دوستو کیسے ہیں آپ؟ یہ بات ہے 10 اپریل 1912 کے واقعہ کی۔ RMS ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا اور اپنے وقت کا سب سے لگزریس جہاز یہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ یہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک جا رہا تھا، جس میں ہر طرح کے لوگ سوار تھے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور ایکٹرز سے لے کر مائیگریٹ جو بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ جا رہے تھے۔ اس جہاز کی کمان سنبھالے ہوئے تھے 62 سال کے سینئر کیپٹن ایڈورڈ جون سمتھ۔ مسافروں میں، عوام میں اور میڈیا میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی جہاز کو لے کر۔ یہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے بلکہ تقریباً 269 میٹر لمبائی میں اور 50 میٹر سے زیادہ اونچائی میں۔ اس کے ساتھ اس جہاز میں جو لگژری استعمال کری گئی تھی اسے بنانے کے لیے وہ حیران کر دینے والی ہے۔ اس زمانے میں اس جہاز کی تعمیر میں $7.5 ملین کی لاگت آئی تھی، جو کہ اگر آپ آج کی کیلکولیشن کو مد نظر رکھیں تو آج کے $400 ملین کے برابر ہے۔ مزید یہ کہ ٹائٹینک کو بنانے میں جس قسم کی حفاظتی خصوصیات کا استعمال کیا گیا تھا، اس جہاز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انسنکیبل ہے، ایک ایسا جہاز جو کبھی ڈوب نہیں سکتا کیونکہ یہ اتنا سیف ہے۔ اس جہاز کو بنانے والی کمپنی کا نام وائٹ سٹار لائن تھا۔ اس کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ اتنے کانفیڈنٹ تھے اس چیز کو لے کر کہ انہوں نے پبلک کے سامنے آ کر اوپنلی کہا کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے، لیکن 2 دن بعد اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے کے بعد ہی 12 اپریل 1912 کو یہ جہاز ڈوب گیا۔ ایسا کیا ہوا اس رات جس نے اس اتنے محفوظ ٹائٹینک جہاز کو ڈبو دیا، جو اس وقت کا سب سے محفوظ جہاز تھا؟ آئی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب نیو ورلڈ کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جہاز کی روانگی کے 2 دن بعد ہی اسے پہلی برف کی وارننگ ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جس اٹلانٹک اوشن پر تیر کر یہ جہاز امریکہ کی جانب عبور کر رہا تھا، وہاں پر برف کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں اور یہ پہاڑ اس جہاز کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ وارننگ کوئی اتنی انیوژول چیز نہیں ہے۔ سمندر سے گزرنے والے جہاز اکثر اپنے آس پاس والے جہازوں کو ریڈیو کے ذریعے کمیونیکیٹ کر کے بتاتے رہتے ہیں کہ سمندر کی اس جگہ میں بہت زیادہ برف موجود ہے، دھیان سے آگے بڑھیں۔ یہ وارننگ ملنے کے بعد ٹائٹینک نے خطرے سے بچنے کے لیے 2 بار اپنا راستہ تبدیل کیا، لیکن اس نے اپنی رفتار کم نہیں کی۔ یہ جہاز 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ دن ڈھلنے لگتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ رات کا ٹائم تھا تو ویزیبلٹی بہت کم تھی۔ اسی کے ساتھ جہاز کے اوپر ایک کروز نیسٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم اتنی اونچائی پر ہوتا ہے جسے لک آؤٹ پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کو بٹھایا جاتا ہے ہمیشہ، تاکہ وہ دیکھ سکے سامنے جہاز کے آنے والی رکاوٹیں یا کوئی اور چھوٹا بحری جہاز تو نہیں آ رہا۔ یہاں بیٹھے ہوئے شخص کو انتہائی کم درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں بہت تیز رفتار سے چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دیکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ رات کے 11:39 پر فریڈرک نامی شخص جو اس کروز نیسٹ میں بیٹھا تھا، یہ اچانک سے اپنے سامنے ایک آئس برگ دیکھتا ہے۔ اس نے جلدی سے 3 بار گھنٹی بجائی تاکہ نیچے لوگوں کو الرٹ کیا جا سکے، پھر فون اٹھا کر کال کرتا ہے آفیسر کو برج پر۔ وہ چیخ کر کہتا ہے کہ سامنے ہمارے ایک آئس برگ ہے، فوری طور پر جہاز کو موڑ دیا جائے۔ فرسٹ آفیسر ولیم نے یہ پیغام سنا اور انجن روم کو اشارہ کیا کہ جہاز کو بائیں سمت میں موڑ دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے بہت دیر ہو چکی تھی۔ صرف 1 منٹ بعد رات 11:40 پر جہاز آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ آئس برگ کوئی چھوٹا موٹا آئس برگ نہیں تھا، اس کی لمبائی تقریباً 200 سے 400 فٹ تک تھی۔ یہ تقریباً فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا اور اونچائی میں کروز نیسٹ تک آ رہا تھا۔ آئس برگ کے ساتھ ٹکراؤ ٹائٹینک جہاز کا سامنے دائیں جانب کی طرف سے ہوا تھا۔ تقریباً 10 سیکنڈ تک جہاز آئس برگ سے ٹکراتا رہا اور ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا، جس کی وجہ سے جہاز کی مین باڈی میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے۔ ٹکراؤ کے چند سیکنڈ بعد کیپٹن سمتھ اور آرکیٹیکٹ تھامس اینڈریوز یہ دیکھنے کے لیے فوراً پہنچے کہ جہاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس حادثے کی وجہ سے۔ جب انہوں نے دیکھا تو یہ سمجھ آیا کہ یہ جہاز تو ڈوب جائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بالکل چونک گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے، یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس جہاز کو انسنکیبل کیوں مانا جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جہاز کے اندر سیفٹی فیچر جو تھے وہ کمال کے تھے۔ 2 اہم سیفٹی فیچر تھے جن کی وجہ سے ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔
इस जहाज के अंदर पहला जो सेफ्टी फीचर था वो डबल बॉटम हल था। डबल बॉटम हल का मतलब है कि दो तहें लगी हुई थी। यहाँ पर नीचे से अगर एक तह टूट भी जाए तो दूसरी तह जहाज को बचा सकती है। दूसरा इसमें जो सेफ्टी फीचर था, जो पूरे जहाज की मेन बॉडी है, जो हल है, इसे 16 अलग अलग वाटर टाइप कंपार्टमेंट में तकसीम किया गया था। यहाँ तक कि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो भी ये जहाज तैरता रहेगा। इससे इस जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो नुकसान हुआ था वो जहाज के किनारे पर हुआ था, तो जो डबल बॉटम हल थे वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। दूसरा ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके थे और इनमें पानी भर रहा था। लिमिट सिर्फ 4 की थी, मगर 6 कंपार्टमेंट का पानी से भरने का मतलब था कि जहाज को पानी में डूबने से बचाया नहीं जा सकता। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने अपने अमले को रेडियो पर एक डिस्ट्रिक्ट कॉल भेजने का हुक्म दिया। जो आसपास के करीब बहरी जहाज होंगे वो शायद इस सिग्नल को डिटेक्ट कर लें और हमें बचाने आ जाएं। ये लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तकरीबन 20 मिनट बाद 12:20 पर वहाँ पर एक जहाज RMS कार्पेटिया, जो कि टाइटैनिक के करीब मौजूद था, वो इस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है और वो रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है। वो इनसे बात करने के बाद और फिर वो अपने लोगों को कहता है कि जहाज का रुख मोड़ा जाए, हम टाइटैनिक की तरफ जाएंगे उन्हें बचाने के लिए। यहाँ पर मसला ये था कि जहाज करीब होने के बावजूद टाइटैनिक से दूर था। अगर ये अपनी तेज रफ्तारी के साथ टाइटैनिक की तरफ आएगा तो भी इससे टाइटैनिक तक पहुँचने में 3.5 घंटे लगेंगे। अमले के बाकी अरकान ने इस उम्मीद पर आसमान में फ्लेयर्स और रॉकेट चलाए कि अगर कोई और करीब जहाज होगा तो वो हमारी तरफ ध्यान देगा, लेकिन बदकिस्मती से कार्पेटिया जहाज के अलावा किसी का जवाब नहीं आया। इसी दौरान कैप्टन स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं कि मुसाफिरों को जहाज से बाहर निकाला जाए लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के मुताबिक लाइफ बोट पर सवार होने के लिए ख्वातीन और बच्चों को पहले तरजीह दी जाएगी। जहाँ तक जहाज के मुसाफिरों की बात है तो वो इतने खौफजदा नहीं थे। ज्यादातर मुसाफिरों का ख्याल था कि टाइटैनिक बहुत महफूज है और ये डूबने वाला नहीं है, इसलिए उनका कहना था कि परेशान होने की बात नहीं है। इसी वजह से पहली लाइफ बोट जो नीचे गई थी उसमें 65 अफराद की गुंजाइश थी, लेकिन सिर्फ 28 अफराद ही उसमें गए। आधी लाइफ बोट नीचे खाली गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भर गया। जहाज अब आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। इस पर मुसाफिरों को एहसास हुआ कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है, और जब ये एहसास हुआ तो अफरा तफरी मच गई और लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक आगे वाले कंपार्टमेंट में पानी इतना भर चुका था कि जहाज का आगे वाला हिस्सा, जिसको बो कहा जाता है, वो पानी के अंदर डूबने लगा, जिसकी वजह से जो पिछला वाला हिस्सा था टाइटैनिक का, वो पानी से बाहर आ गया। जहाज इस हद तक झुक गया तो मुसाफिर और ज्यादा खौफजदा हो गए और वो लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। अब मसला ये था कि लाइफ बोट की भी कमी थी। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिनमें तकरीबन 1200 अफराद बैठ सकते थे, लेकिन जहाज में तकरीबन 2200 अफराद सवार थे। रात के 2:15 पर आखिरी लाइफ बोट को टाइटैनिक से नीचे उतारा गया, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 अफराद मौजूद थे। इसमें कुछ लोगों ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया और जहाज में ही रुके रहे। आई विटनेस के मुताबिक 2:20 के करीब जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। 1500 अफराद जो जहाज पर मौजूद थे, या तो वो जहाज के साथ डूब गए या वो लोग जो तैरना जानते थे हाइपोथर्मिया की वजह से हलाक हो गए, क्योंकि पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर आप इस दर्जा हरारत में पानी में गिर जाएं तो चंद मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से। टाइटैनिक जहाज के कप्तान एडवर्ड कहा जाता है कि आखिर तक ये जहाज के व्हील के साथ ही खड़े रहे और जहाज के साथ डूब गए। दूसरी तरफ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी अपने आप को गोली मारकर। RMS कार्पेटिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था, वो इस मुकाम पर सुबह 3:30 के करीब पहुंचा था, करीब 1 घंटे लेट इन लोगों को बचाने के लिए जो उस जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट में लोग निकल गए थे उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। इस जहाज के हादसे के बाद बहुत से सवालात उठने लगे, कई तनाज़ात ने जन्म लिया, कई तहकीकात कराई गई और कुछ ऐसे नामालूम हकायत मंजर आम पर आए जिनको देखकर सब हैरान रह गए। टाइटैनिक जहाज के तबाह होने की तहकीकात के दौरान माहिरीन को एक अजीब और गैर मामूली चीज नजर आई। समुद्र की तह में जहाज का अगला हिस्सा अच्छी हालत में था, जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई खराब हालत में था, और वो भी एक दूसरे से 2000 फीट दूर पड़े थे। दरहकीकत सैकड़ों साल तक समुद्र की तह में पड़े रहने के बाद लोहा और फौलाद सड़ गया, लेकिन अगर ये दोनों एक ही जहाज का हिस्सा थे और एक ही वक्त में डूबे थे तो अगले और पिछले हिस्से में इतना फर्क क्यों?
टाइटैनिक जहाज के तबाह होने की तहकीक के दौरान रिसर्चर इस बात को समझने से कासिर थे जहाज का अगला हिस्सा जिसे पो कहते हैं वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से बेहतर हालत में कैसे था और इन दोनों के दरमियान में इतना फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को हल करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ROVs ने टाइटैनिक के जहाज के तबाह होने की जगह की लाखों तस्वीरें खींच ली और फिर इनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से इन्हें 3D मॉडल में तब्दील किया। इस मॉडल में वो तमाम तफसीलात भी मौजूद थी जिन्हें कोई आम कैमरा या इंसानी आंख इस गहराई में नहीं देख सकती। मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील का जहाज नहीं बल्कि कागज का एक जहाज हो। मुख्तलिफ हिस्से जहाज से अलग होकर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। सिर्फ इसमें लगे दो घर के साइज के बड़े बड़े इंजन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस मॉडल में एक और अहम सुराग भी छुपा हुआ है, वो इशारा जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले जब स्टर्न समुद्र की तह में आकर टकराया तो इसके निशानात आज तक मौजूद हैं जो सिर्फ 3D मॉडल के जरिए देखे जा सकते हैं। इन निशानात से जाहिर होता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशानात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टर्न इस वक्त 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर जा रहा था। जब जहाज का पिछला हिस्सा इतनी रफ्तार से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेज ने जहाज के ढीले हिस्सों को उखाड़ दिया और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं बो सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोनोमिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक इसी तरह जैसे कोई जहाज पानी पर तैरते हुए उसे अलग करके रास्ता बना लेता है। यही वजह है कि बो सेक्शन स्टर्न के मुकाबले ना ही घूम रहा था और ना ही पानी की फोर्सेज उस पर डायरेक्टली हमला कर रही थी। बिलाखिर 110 सालों पहले पेश आने वाली हादसात की मिस्ट्री को हल कर लिया गया। उम्मीद करते हैं न्यू वर्ल्ड की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक करेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।